Yesterday topic. Yesterday I am discussing this question. Suppose AR so on AR to power n minus 1 in GP. Mean there are n values in GP series. Okay. So we want to prove. Then we want to prove what? We want to prove AM, GM and HM in also GP. Okay. So कल जहाँ तक किया था हमने हमने सारी वैल्यू निकाला था GM स्क्वायर इक्वल टू HM और इंटू AM करना था HM इंटू AM। लेकिन जब हम HM कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने एक मिस्टेक ये किया था, ध्यान नहीं दिए थे। हमने नीचे की वैल्यू तो कैलकुलेट किया था समेशन 1 एक्स आई को, मतलब 1/A 1/AR, लेकिन उसको n से फिर डिवाइड नहीं किया था। जैसे डिवाइड कर देंगे आप, जैसे HM होता है, HM कैसे कैलकुलेट करोगे? HM इक्वल टू n/, समेशन 1/xi, अगर xi x1 x2 x इन ऑब्जर्वेशन है, दिस इज द फार्मूला ऑफ HM। तो यहाँ पर कैसे करोगे? n और वैल्यूज पुट कर दो तो 1/A प्लस 1/AR प्लस 1/AR स्क्वायर प्लस so on, right? Plus 1/AR to power n minus 1. Okay. So हम लोगों ने कल क्या किया था? हम लोगों ने इतना कैलकुलेट कर लिया था, इतनी वैल्यू, लेकिन हमने ये पूरा नहीं कैलकुलेट किया था। HM तो पूरा यही आएगा, तो ये मिस्टेक थी वहाँ पर। तो इसको जैसे कैलकुलेट करेंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे तो GM स्क्वायर इक्वल टू HM इंटू AM आ जाएगा। ठीक है, तो ये कल के क्वेश्चन पे था। और कल हमने कहा था, हम बात किया था, कल किस टॉपिक पे बात किया था? इन स्टैटिक क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट मोमेंट्स। ओके, वी सी रिलेशन बिटवीन how to define the central moments in terms of raw moment and raw moment in terms of central moment. Okay, so today we are discussing about measure of skewness. So anyone, what is the measure of skewness? कोई बताइए व्हाट इज द मेजर ऑफ स्क्यूनेस। अच्छा, स्क्यूनेस किसे कहते हैं? lack of symmetry in the data. Okay. So now what is the symmetrical distribution? As you say, measure what is the symmetrical distribution? How can say any distribution is symmetrical? I think this is a property of symmetric distribution, not definition of symmetric distribution. So if mean, median, mode are equal, then the distribution is symmetric, right? You want to say that? Okay. Anyone, what is the symmetric distribution in terms of random variable? How can say any distribution is symmetric about any point? Okay. Anyone, another person? Yeah. ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बताया कि मीडियन हाफ होगा एंड ये श्योरिटी है मीडियन हाफ होगा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। और जिसने लास्ट में बताया कि मीडियन हाफ होगा, किसी भी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन हाफ होगा। किसने बताया है?
हाँ, तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन हाफ होगा। आर यू श्योर? अगर y नॉर्मल 0 कम 1 है, व्हाट इज द मीडियन ऑफ नॉर्मल 0 कम 1? हाँ, यस। So how can you say median is half? So okay, what is the measure of skewness? Measure of skewness. Okay. So the literary meaning of measure of skewness is lack of symmetry. Okay. Lack of symmetry, right? Okay. So in the terms of random variable, if any distribution is symmetric about any point A, then if anyone remember, suppose A is symmetric about X, then Fa plus X equal to Fa minus X. And then X is symmetric about A, then X is symmetric about A. X is symmetric about point A. Right, this is the definition. Well, if anyone remember, किसी को याद है हम रैंडम वेरिएबल में यही definition लिखते हैं, right? Now, but in terms of data, how can we define this definition? So, for a frequency distribution, of a discrete variable x, called symmetric about x naught if f of x naught minus h equal to f of x naught plus h for all h, where fx is the frequency of x, the frequency of x. Right? Motion figure. So suppose x take first value x naught minus h3, second value x naught minus h2, x naught minus h1. Here x naught, okay. This is also x naught plus h1, x naught plus h2. Okay. So this is x naught
this is x naught minus h3, this is x naught plus minus h2. This is x naught minus h2, and this point is x naught minus h1. This point is x naught minus h1. Sorry, this is plus h1, x naught plus h1. And this point is x naught plus h2 plus h2, and this point is x naught plus h2. Right. So this is x naught. So suppose okay, this okay, then this kind of this. Okay. Here image is not better because यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा है, क्लियर तो नहीं बना, फिगर क्लियर तो नहीं बना है, लेकिन थोड़ा सा आप विजुलाइज कर सकते हैं. दिस इज डिनोट फ्रीक्वेंसी. ओके, दिस इज डिनोट फ्रीक्वेंसी, दिस इज डिनोट फ्रीक्वेंसी. ओके, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो x नॉट पे x नॉट एक पॉइंट ऑफ सिमेट्री है. जैसे x नॉट पॉइंट ऑफ सिमेट्री, तो आप x नॉट के इधर लेफ्ट साइड दे सकते हैं, राइट साइड दे सकते हैं. मतलब x नॉट माइनस h पॉइंट पर, x नॉट प्लस h1 पॉइंट पर, x नॉट माइनस h2 पॉइंट पर और x नॉट प्लस h2 पॉइंट पर. तो जैसा देखेंगे तो ऐसा लग रहा है ना जैसे सिमेट्री को इधर भी कर्व वही है, उधर भी कर्व है. तो अगर कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल सिमेट्रिक है तो उसका जो इमेज होगा, जो ज्योमेट्री होगी, वो ऐसी ज्योमेट्री होगी, किसी पॉइंट के बाद अगर सिमेट्रिक होगा. ठीक है. नॉर्मल के केस में डिफिनीशन सेम रहेगी, डिफिनीशन नहीं चेंज होगी. ठीक है, डिफिनीशन नहीं चेंज होगी नॉर्मल के केस में. सॉरी, कंटीन्यूअस वेरिएबल के केस में डिफिनीशन नहीं चेंज होती. बस फिगर से आप समझ लीजिए, कंटीन्यूअस में भी डिफिनीशन यही होगी. ठीक है, कंटीन्यूअस में भी यही डिफिनीशन होगी. कंटीन्यूअस में भी यही डिफिनीशन होगी. ठीक है, तो फिगर उतना अच्छा नहीं, क्लियर नहीं बना, लेकिन आप इससे देख सकते हैं. सपोज कीजिए कि ओके, तो सपोज दिस पॉइंट इज x नॉट एंड दिस इज x नॉट माइनस h, दिस इज x नॉट प्लस h. तो यहाँ सिमेट्रिक होगा तो ऐसा होगा x नॉट माइनस h इक्वल टू x नॉट प्लस h. और जो f ऑफ x है, इसका मतलब क्या है, f ऑफ x करस्पॉन्डिंग डेंसिटी होगी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. ठीक है, f ऑफ x जो होगी वो होगी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. तो ये डिफिनेशन हो गई सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की. सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, अदरवाइज मैं मेजर ऑफ स्क्यूनेस डिफाइन करूँ. मेजर ऑफ स्क्यूनेस का जैसे सीधा सा मीनिंग बताया, लैक ऑफ सिमेट्री. या तो वो पॉजिटिव स्क्यूड होगा या तो नेगेटिव स्क्यूड होगा, या तो राइट लेफ्ट स्क्यूड होगा या तो लेफ्ट स्क्यूड होगा. राइट. अगर कोई सिमेट्रिक होता है कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका मीन मीडियन मोड और यूनी मॉडल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, अगर बाई मॉडल हो गया तो दिक्कत है ना. यूनी मॉडल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ये एक थ्योरम हो गई एक तरह से. सो फॉर यूनी मॉडल symmetric distribution
सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मॉड, राइट। मीन इक्वल टू मीडियन equal to mod. If we denote mean by m, if we denote mod by median by md and mod by mo, then m equal to md equal to mo, right? So now for positive skew distribution, so positive skew distribution का ग्राफ कैसा होगा? अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव स्क्यू है तो उसका ग्राफ कैसा होगा? उसका ग्राफ ऐसा होगा कुछ, राइट। अगर कोई पॉजिटिव स्क्यूड है तो उसका ग्राफ ऐसा होगा, अगर कोई निगेटिव स्क्यूड है तो उसका ग्राफ ऐसा होगा कुछ, राइट। और सिमेट्रिक का आपने देख लिया, सिमेट्रिक का ग्राफ कैसा होता है, नॉर्मल की तरह बेल शेप होता है। तो पॉजिटिव स्क्यूड के लिए क्या होता है? मीन मीडियन मॉड में कोई रिलेशन बताओ मुझे। बताइए पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन मीडियन मॉड में क्या रिलेशन होता है? ओके, एंड फॉर नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ओके। सो फॉर पॉजिटिव, ये इसको अगर हम पॉजिटिव बोल दें, पॉजिटिव पॉजिटिव का ग्राफ है, तो दिस इज पॉजिटिव स्क्यू, and this is negative skew, right? So ये मॉड होगा, ये मॉड होगा या मीन? ये क्या होगा यहाँ पर? ये मीन होगा, मीन सबसे बड़ा, मीडियन मॉड, राइट। तो इसके लिए क्या होता है? पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए क्या होता है? पॉजिटिव स्क्यूड के लिए मीन ग्रेटर होगा मीडियन से, मीडियन से ग्रेटर होगा मॉड, मीडियन ग्रेटर होगा मॉड से। एंड निगेटिव स्क्यूड के लिए ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। अब बहुत सारे मेजर ऑफ स्क्यूनेस डिफाइन किए गए, ठीक है। तो अब बात करते हैं उसी मेजर ऑफ स्क्यूनेस में, ठीक है, मेजर ऑफ स्क्यूनेस की। तो पहला मेजर ऑफ स्क्यूनेस आता है कर्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ मेजर्स, ये स्क्यूनेस। ओके, सो पहला स्क्यूनेस आता है कर्ल पियर्सन। ये कर्ल पियर्सन कौन के बता सकता है कोई? कर्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस,
कल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्किनेस में हम डिफाइन करते हैं, सपोज एस के इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइड बाई सिग्मा। कल पियर्सन एक स्टैटिस्टिशियन था, ठीक है। देखो दो स्टैटिस्टिशियन बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक कल पियर्सन एक आर एफ ने स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया। फॉरेन के इंडियन स्टैटिस्टिशियन में राव ब्लैकवेल सर, राव ब्लैकवेल एंड पीसी महालनोबिस सर, दो स्टैटिस्टिशियन इंडियन स्टैटिस्टिशियन इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट, एक राव ब्लैकवेल सॉरी राव सर, राव क्रैमर राव इक्वलिटी जो बोलो राव ब्लैकवेल जैसे, उसमें राव सर जो है वो इंडिया के हैं, ठीक है। एंड पीसी महालनोबिस सर को तो जानते हैं सब। तो इंडिया के दो स्टैटिस्टिशियन बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था इंडिया में। अगर कहा जाए तो इंडिया में स्टैटिस्टिक जो आज चल रही है आईएसआई जो है वो पीसी महालनोबिस सर ने ही ओपन किया था। सो इन्हीं लोगों की वो है, इसीलिए इंडिया स्टैटिस्टिक्स में अदर कंट्री के वैल्यूएबल में क्यों इतना वो है, क्योंकि इंडिया में भी स्टैटिस्टिक्स उसी समय स्टार्ट हो गई थी जब फॉरेन में स्टार्ट हुई थी, थोड़ा बहुत ही डिफरेंट था। इसीलिए इंडिया में भी स्टैटिस्टिक्स की उतनी क्वालिटी है जितना फॉरेन में है स्टैटिस्टिक की क्वालिटी। इंडिया में भी उतना ही अच्छी रिसर्च हुई जितनी अच्छी फॉरेन में स्टैटिस्टिक्स में रिसर्च हुई है, ठीक है। तो कल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्किनेस जो डिफाइन है वो है एस के इक्वल टू मीन माइनस मॉड अपॉन सिग्मा। अब आपके पास मैंने एक रिलेशन बताया था मीन मीडियन मॉड में, इंपीरिकल रिलेशन मैंने बताया था ना, इसी याद है रिलेशन क्या होता है मीन मीडियन मॉड में? बताओ भाई, किसी को याद है नहीं मैंने क्या बताया था? ओके, सो यहाँ पर आप जैसे रिलेशन लिखेंगे तो आप बहुत सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, राइट राइट है, मतलब बहुत उसके टर्म में फाइंड कर सकते हैं, मीन और मीडियन के टर्म भी। और so now if we know that mod equal to 3 median minus 2 mean, 3 median minus 2 mean, राइट। तो यहाँ मॉड की जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ आएगा m माइनस 3 मिलियन प्लस 2 मीन, राइट, डिवाइड बाई सिग्मा। सो दिस इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाई सी। तो एस के का ये भी फार्मूला हो गया, ठीक है। तो अब इसी फार्मूले में, अगर इस फार्मूले में 3 कंडीशन हो सकती है, अगर एस के इक्वल टू 0 हो, एस के 0 हो, इफ वही मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मॉड, अगर एस के ग्रेटर 0 हो, एस के ग्रेटर 0 मतलब क्या होगा, दिस इज पॉजिटिव स्क्यूड, दिस इज पॉजिटिव स्क्यूड, और पॉजिटिव स्क्यूड के लिए क्या होगा, मैंने बताया था पहले कि पॉजिटिव स्क्यूड के लिए हमेशा मीन ग्रेटर होता है मीडियन से, ग्रेटर होगा मॉड से। अगर एस के लेस 0 हो, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव स्क्यूड, नेगेटिव स्क्यूड। तो नेगेटिव स्क्यूड के लिए मीन से बिगर होगा मीडियन और मीडियन से ग्रेटर होगा मॉड, ओके राइट। सो अब नाउ एक चीज होता है कि हम लिमिट फाइंड कर सकते हैं इसकी लिमिट जो होती है, इसकी लिमिट्स जो होती है एस के की, ये होती है लिमिट फॉर कल पियर्सन कल पियर्सन कोएफिशिएंट जो कि -3 से बिगर एस के 3, ठीक है।
अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? बताइए कोई इसको कैसे प्रूव करेंगे? प्रूफ देखना है या प्रूफ कर लोगे? इसका प्रूफ करना है या कर लोगी? इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? बोलो। अगर प्रूफ करना है तो प्रूफ करवाएं। क्या प्रूफ कराना है? ठीक है, ओके, ठीक है। तो देख लीजिए। सो एस के क्या डिफाइन होता है? एस के इक्वल टू डिफाइन किया था हमने पहले, तो मीन माइनस मॉड था, लेकिन फिर 3 मीन माइनस मीडियन हो गया था, 3 मीन माइनस मीडियन, राइट, बाई सिग्मा, राइट। So now think about mod of mean minus median. So suppose we have n observation of variable x, okay, n observation of variable x, say x1 x2 xn. So mean को हम 1 upon x summation I equal to 1 to n xi ऐसे लिख सकते हैं, माइनस मीडियन, राइट। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ 1/n कामा ले लोगे तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन xi माइनस मीडियन, राइट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन फर्दर सिंप्लीफाई इन दिस वे, दिस इज रिटन एज इन दिस। मीडियन को अगर ब्रैकेट में ले लोगे, n से होल डिवाइड कर दोगे तो मीडियन तो एक कांस्टेंट है, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? सबको समझ में आया ना इतने कैसे मैंने ब्रैकेट को कर दिया? अब मुझे एक चीज बताइएगा, मॉड मीन इक्वलिटी क्या होती है? मॉड ऑफ ए प्लस बी लेसर इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, राइट। बताओ, यही होता है? बोलो, मॉड मीन इक्वलिटी यही होती है ना, मॉड ऑफ ए प्लस बी लेसर इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। मतलब अगर ये n टर्म के लिए हो यही चीज, तो मॉड ऑफ, मान लीजिए कोई समेशन ऑफ ए आई है, आई इक्वल टू 1 to n, so this is less or equal to summation of I equal to 1 to n mod of ai, right। ये समझ में आया? ऊपर वाली इक्वलिटी पता है, मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ये तो पता है ना। वो 2 के लिए है, n के लिए भी जनरलाइज कर सकते हैं। तो यहीं पर अगर मैं ये इक्वलिटी लगा दूं, इससे हमें मिलेगा क्या कि लेस आर इक्वल टू 1 and this is summation, so this is summation I equal to 1 to n mod of xi minus मीडियन। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? तो पूछो। अब मैंने एक चीज बताया था, ये क्या है? ये लिखा क्या है? ये क्वांटिटी पूरी 1 upon n summation xi upon मीडियन, ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है या नहीं? What the meaning of this quantity? By definition, which quantity this is equal? 1 upon n summation I equal to 1 to n mod of xi minus median. This is equal to mean deviation about median, right? This is equal to mean deviation about median.
एन जब मैंने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पढ़ाया था, when we are discussing mean deviation about median, we say this mean deviation about median is always minimum. Okay, so this is the least value, these are the least value. Okay, so this is greater or equal to, sorry, so this value less or equal to 1 upon n summation I equal to 1 to n mod of xi minus x bar, राइट। बिकॉज ये मीडियन जो है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी ऑलवेज मिनिमम होता है, सबसे मिनिमम होता है, लीस्ट होता है, दिस इज द लीस्ट, सो दिस इज लेस आर इक्वल टू 1 upon n summation I equal to 1 to n xi minus x bar, mean this is less or equal to mean deviation about mean deviation about median is minimum and this is less or equal to mean deviation about mean, because मिनिमम है तो मीन से तो छोटा होगा डेविएशन मीन वाले। तो यहाँ तक सबको समझ में आया। यहाँ से ये स्टेप से, इस स्टेप से मैंने स्टार्ट किया था और मैंने यहाँ तक प्रूव किया 1 upon n summation I equal to 1 to n mod of xi minus x bar स्क्वायर। यहाँ तक अगर नहीं समझ में आया है किसी को तो पूछिए, अगर आ गया है तो फिर ठीक है। ठीक है, ये वाला देखिए, मैंने बताया था क्लास पे आपको एक प्रॉपर्टी कि ये डेविएशन मान लीजिए मैं, अच्छा वॉइस में इको हो रहा है क्या? अभी भी हो रहा है? अभी भी हो रहा है? ठीक है, तो मैं ये कह रहा था, जिसने पूछा है, मैंने एक चीज बताया था कि आप इन जनरल मीन डेविएशन कैसे डिफाइन करते हैं अबाउट एनी सेंट्रल वैल्यू। वेट अ सेकंड, हो गई। जैसे हम इन जनरल डिफाइन करते हैं 1 upon n समेशन I इक्वल टू 1 to n mod of xi minus m, ओके, दिस इज मीन डेविएशन अबाउट एनी पॉइंट m, ओके। मैंने बोला था अगर यहाँ m की जगह हम मीडियन पुट कर देंगे, अगर ये मीडियन हो जाएगा तो ये सबसे लीस्ट होगा, मतलब किसी भी m की कोई भी वैल्यू मैं पुट कर दूं यहाँ पर m की, अगर ये मीडियन हो गया, दिस इज मीडियन, दिस इज मिनिमम, ये मिनिमम होगा किसी भी वैल्यू के लिए m, अगर मैं कोई भी ले लूँ मीडियन के अलावा तो मीडियन सबसे मिनिमम होगा, मतलब अगर मैं मीन ले लूँ या फिर मॉड ले लूँ तो मीडियन सबसे मिनिमम होगा। यही तो मैंने लिखा था कि दिस इज इम्पॉर्टेंट। अगर मीडियन के अबाउट हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करते हैं तो दिस क्वांटिटी इज मिनिमम, तो ये ऑलवेज मिनिमम होगी किसी भी क्वांटिटी से, किसी के अबाउट आप मीन डेविएशन निकालिए किसी सेंट्रल वैल्यू के अबाउट तो मीडियन सबसे मिनिमम होगी। सो 1 upon n मॉड ऑफ xi, मैंने बोला ये मिनिमम होगा, तो मिनिमम किसी भी से होगा, तो मैंने ये मीन डेविएशन अबाउट मीन से तो मिनिमम ही होगा ना, ये इक्वल हो सकता है लेकिन ग्रेटर कभी नहीं हो सकता, या तो उसके इक्वल हो सकता है, बहुत ज़्यादा अगर केस हुआ तो इक्वलिटी का केस आ जाएगा। इक्वलिटी का केस तभी पॉसिबल है जब सारी डेविएशन इक्वल हो जाए, या फिर हमेशा छोटा होगा। ये समझ में आया? जिसका डाउट था उसको समझ में आया? ओके, सो अब हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया मीन माइनस मीडियन इज लेस आर इक्वल टू 1 by n समेशन I इक्वल टू 1 to n mod of xi minus x bar, सॉरी हाँ, mod of xi minus x bar, राइट। अब क्या है? सो एसके स्क्वायर है क्या? एसके अब क्या होगा? एसके स्क्वायर, अगर हम एसके स्क्वायर की बात करें तो दिस इज एसके स्क्वायर। सो एसके स्क्वायर क्या है? ये 3 एसके मीन माइनस मीडियन
अपॉन सिग्मा इसका होल स्क्वायर, राइट। तो अब आप इसकी वैल्यू जैसे लिखेंगे तो यहाँ आएगा, बिकॉज अभी हमने फाइंड क्या किया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 मॉड के अंदर ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो अभी मैंने फाइंड किया कि मॉड ऑफ मीन माइनस मीडियन दिस इज लेस आर इक्वल टू, तो कांस्टेंट को वैसे ही लिख रहने दीजिए और वहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए उसकी बस। और सिग्मा की वैल्यू जो होती है वो पुट कर दीजिए, सिग्मा स्क्वायर की एक तरह से। देखो ये वैल्यू एक तरह से इसको कर दो तो ये हो जाएगा 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर, राइट। इसको छोड़ो, इसको कंटिन्यू, राइट। तो अभी हमने पीछे स्लाइड पे यही तो शो किया कि मॉड ऑफ मीन माइनस मीडियन ये लेस आर इक्वल होगा किसके, 1 अपॉन n समेशन i इक्वल टू मॉड ऑफ x i माइनस x बार। तो बस इसकी प्लेस पे इसकी वैल्यू पुट कर दो और यहाँ इक्वलिटी लगा दो, मतलब इक्वलिटी का मतलब यहाँ इक्वलिटी लगा दो, जो कि इक्वलिटी लेस देन है, इक्वलिटी लगा दो इक्वलिटी में, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? बताओ अगर नहीं समझ में आया तो फिर आगे अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे, यही बताएं। समझ में आया ना सबको इतना? सो अब इस वाले पार्ट को जो फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल किसकी आएगा, ये इक्वल आएगा एन एन, तो एन से एन कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, और ये 3 की जगह 9 हो जाएगा, ये 3 की जगह 9 हो जाएगा, 9 डिवाइड बाई नीचे एन आ जाएगा, एन समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक है। तो एक इनइक्वालिटी मैंने कल बताया था कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, मैंने कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी बताया था कि समेशन ए आई बी आई इसका होल स्क्वायर जो होगा ये हमेशा लेस आर इक्वल टू होगा समेशन ऑफ ए आई स्क्वायर इन समेशन ऑफ बी आई स्क्वायर। यहाँ आई इक्वल टू क्या है, आई इक्वल टू 1 टू एन, आई इक्वल टू 1 टू एन, आई इक्वल टू 1 टू एन। सो पीछे हमने पीछे हमने क्या फाइंड किया, पीछे हमने फाइंड किया था कि एक्स के स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 9 एंड समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इसका होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई एन समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ये सबको समझ में आ रहा है ना? समझ में जहाँ ना तो पूछ लेना। अब अगर हम कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, वैसे कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, तो कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में क्या लिखें कि ऐसा आ जाए, तो कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में अगर मैं ए आई की जगह ए आई के प्लेस पे मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार पुट कर दूं और बी आई के प्लेस पे 1 पुट कर दूं, बी आई इक्वल टू 1, तो क्या आएगा, जो क्वांटिटी आएगी वो आएगी समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार और बी की जगह 1 तो 1, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई स्क्वायर लेस आर इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन ए आई की जगह मॉड ऑफ एक्स आई। सो मॉड ऑफ एक्स आई के स्क्वायर करोगे तो सिंपल स्क्वायर आ जाएगा ना,
मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, मॉड भी पॉजिटिव एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे बी आई की जगह आप पुट करेंगे आई इक्वल टू 1 to n, तो ये 1 हो जाएगा। तो जब इसको 1 को n टाइम ऐड करेंगे तो ये n हो जाएगा, राइट। दिस इज समेशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो n हो जाएगा, इस क्वांटिटी को जब n टाइम्स ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। जब 1 हो जाएगा तो यहाँ से आपने क्या फाइंड कर लिया, यहाँ से आपने एक तरह से इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उस पार्ट को, देखना इस पार्ट की वैल्यू आपने इस इनइक्वालिटी से फाइंड कर ली। देखिएगा कैसे आपने फाइंड किया कि समेशन आई इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इसे लेस आर इक्वल टू n समेशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, राइट। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए सारी क्वांटिटी को, तो 1/n मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई n समेशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस बार स्क्वायर, सो दिस इज लेस आर इक्वल टू 1। कोई प्रॉब्लम? तो हमने पीछे क्या बोला कि आपके पास यही क्वांटिटी तो लिखा है, तो जब ये लेस आर इक्वल टू 1 आया तो ये 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक तरह से क्या हो जाएगा एस के स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 9, नहीं आएगा एस के स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 9। तो यहाँ से एस के की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, सो एस के लाई बिटवीन -3 लेस आर इक्वल टू एस के -3 से एस के की वैल्यू -3 के इक्वल है उससे ग्रेटर और 3 के इक्वल है लेस। समझ में आई ये कैसे प्रूफ है इक्वलिटी? जिसको समझ में ना आया हो तो पूछ सकता है, वॉइस पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं आप लोग। वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं? बोलो भाई वॉइस तो क्लियर है ना? ओके, सो अगर यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछो। और इसका प्रूफ अगर देखना है तो एस सी गुप्ता बीटी कपूर में देख लेना, प्रूफ समझ में आया हो। अगर ना आया हो तो उससे और क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही लिखा है, अगर यहाँ किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। यहाँ 2 इनइक्वालिटी यूज करना था, 2 इनइक्वालिटी क्या 2 रिजल्ट यूज करना था, एक मीन डेविएशन और मीडियन, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक कौन सी सॉलिड इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये प्रूफ थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जो प्रूफ के लिए मैंने बोला ना, प्रूफ CSIR में प्रूफ नहीं पूछता है, तो प्रूफ के लिए मत जल्दी आप कोशिश करिएगा घर पे, जो चीज़ ना समझ में आए तो कल डिस्कस करिएगा, ठीक है। अगर किसी को फिर भी किसी डाउट है तो पूछो, अगर नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब अनादर मेजर ऑफ स्क्यूनेस है, ठीक है। तो ये तो एक मेजर ऑफ स्क्यूनेस हो गया। अब अनादर मेजर ऑफ स्क्यूनेस है, मतलब सेकंड है, इसको बोलते हैं प्रोफेसर या ओनली या प्रोफेसर, ठीक है। प्रोफेसर प्रोफेसर बावले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ऑफ स्क्यूनेस तो ये स्क्यूनेस जो है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाउली कोएफिशिएंट, ये क्वार्टाइल्स पे बेस है, ठीक है। ये बेस्ड ऑन क्वार्टाइल है, जैसे वो मीन मीडियन मॉड पे बेस्ड था वैसे ये क्वार्टाइल पे बेस है, ठीक है। सो इसको डिफाइन करने के लिए एस के इक्वल टू
ये आया Q3 माइनस एम डी माइनस Q3 सॉरी माइनस एम डी माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 माइनस एम डी प्लस एम डी माइनस Q1। सो ये आ जाएगा आपका Q3, जब ऊपर वाले को सॉल्व करोगे फर्दर तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2 MD, राइट। नीचे वाला आएगा आपका Q3 माइनस Q। तो इसको हम बोलते हैं बॉयलर कोएफिशिएंट ऑफ स्टीफनेस, मतलब ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टीफनेस टोटली बेस है हमारा क्वार्टाइल्स पर, राइट। तो ये बात क्लियर हुई सबको। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली बात तो अगर एसके की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या आएगा यहाँ से, जैसे पीछे हमने किया था तो यहाँ पर भी देख लो। तो यहाँ पर पहले अगर एसके की वैल्यू 0 हो जाएगी, एसके अगर 0 हो जाएगा तो Q3 माइनस एम डी इक्वल टू एम डी माइनस Q1। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर सिमेट्रिक एस इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, एस के इक्वल टू 0 मतलब होता है कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो फॉर ए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। जो मीडियन होता है, कोई अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, जो मीडियन होगा तो मीडियन इज इक्विडिस्टेंस डिस्टेंस okay, from the upper and lower quartile। from the upper and lower quartile। from the upper and lower quartile। अगर इफ पॉजिटिव हुआ तो इसके ग्रेटर 0 होगा। इसके ग्रेटर 0 का मतलब क्या है, Q3 माइनस एम डी, ये क्वांटिटी ग्रेटर होगी किससे, एम डी माइनस Q1 से। और इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ से एक चीज और मिलेगा, Q3 प्लस Q1, ये ग्रेटर कह सकते हो आप 2MD। अब सिमिलर अगर एस के निगेटिव हुआ तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इसके निगेटिव यहाँ से Q3 माइनस एम डी मतलब मीडियम ग्रेटर होगा एम डी माइनस Q। तो जैसे पीछे हमने देखा लिमिट्स आर कैलकुलेशन कोएफिशिएंट ऑफ स्टीफनेस, तो इसकी भी लिमिट होती है। बॉयलर कोएफिशिएंट ऑफ स्टीफनेस की भी लिमिट होती है। तो उसकी लिमिट्स की बात कर लें अगर, तो उसकी लिमिट्स हमने क्या बताया था कि उसकी लिमिट होती है, जो उसकी लिमिट होती है -3 से 3। तो इसकी लिमिट होगी -1 से 1। अगर इसका भी प्रूफ देखना है तो देख लो, इसका प्रूफ तो इजी है। इसके प्रूफ में क्या है, एसके की डिफिनेशन क्या है, एसके इक्वल टू है क्या, एसके इक्वल टू Q3 माइनस एम डी 1 ब्रैकेट माइनस एम डी माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस माइनस एम डी प्लस एम डी माइनस मॉड ले लो। तो अब एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा आपने कि मॉड में a माइनस बी
इससे ग्रेटर होता है या इक्वल होता है मॉड ऑफ ए प्लस बी। ये प्रॉपर्टी तो पढ़ा होगा मॉडुलस की, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू ए। पीछे वाली इनइक्वालिटी जो थी उसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, ट्रायंगल ही बोलते हैं ना उसको। ये इनइक्वालिटी होती, तो यहाँ पर ए की तरह अगर ये कैपिटल ए हो गया, ये कैपिटल बी हो गया, तो सपोज करो ये कैपिटल ए इक्वल टू आपका या स्मॉल ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल बी हो गया, यहाँ पर मैंने बताया कि कैपिटल ए जो होगा ए माइनस बी होगा, ये होगा लेस आर इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से जब फर्दर सॉल्व करोगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू 1 आएगा। ए और बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ये है Q3 माइनस एम डी, तो Q3 माइनस एम डी, बी की वैल्यू एम डी माइनस Q1, तो एम डी माइनस Q1 ये वैल्यू, तो यहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे तो ये क्वांटिटी आएगी, नीचे पुट करोगे तो वही क्वांटिटी आएगी। तो ये कहाँ से कहाँ आ गए, मॉड ऑफ एस के लेस आर इक्वल टू 1 आ गए। यहाँ पर पुट करके देख लो वैल्यू वही आएगी। तो यहाँ से क्या हुआ, मॉड ऑफ एस के लेस 1, तो यहाँ से पता ही चल जाएगा कि -1 से बड़ा इसके ग्रेटर 1। तो यहाँ तक सबको समझ आया, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम इसके प्रूफ में, अगर प्रूफ में प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप। किसी भी पर्सन को किसी प्रकार का कोई डाउट हो, इफ एनी हैव एनी डाउट यू कैन आस्क रिलेटेड टू बॉडी कोएफिशिएंट ऑफ स्केलिस्टिक। अब एक इसकी मेजर ऑफ एस्टिमेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा इन टर्म्स ऑफ बीटा 1, पढ़ा है कि नहीं? बेस्ड ऑन मोमेंट के बेसिस पे जो होता है वो क्या होता है, अगर हम लोग मेजर ऑफ स्केलिंग बेस्ड ऑन मोमेंट्स की बात करें तो यहीं पर देखते हैं, बेस्ड ऑन मोमेंट, बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट ऑफ स्केलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ स्केलिंग। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, सब में पढ़ा होगा कि बीटा 1 जो होता है ये इक्वल होता है किसके, μ4 बाई μ2 स्क्वायर, गामा 1 जो होता है ये इक्वल होता है रूट और पॉजिटिव रूट और बीटा 1। सब में पढ़ा है, सबने पढ़ा है ना, बीटा 1 बीटा 2 हम लोग फाइंड करते हैं, फिर गामा 1 गामा 2 उसके बेसिस पे, बताओ भाई। तो यहाँ से क्या होता है, सॉरी मैंने बीटा 2 की डिफरेंस, हम बीटा 1 डिफाइन कर रहे हैं ना, तो बीटा 1 डिफाइन कर रहे हैं तो ये होगा μ3 बाई μ2 2 3, ये होगा बीटा 1। ओके, बीटा 1 हम मतलब मैंने बीटा 2 डिफाइन कर दिया,
तो बीटा वन यही होता है ना, म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन म्यू टू का होल क्यूब। एक्चुअली में ये होता क्या है, ये मेजर ऑफ मोमेंट्स में जो बेस होता है, एक्चुअली में अगर आपको याद हो तो ये होता है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल क्यूब, नथिंग बट दिस इज जस्ट दिस, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल क्यूब, ये होता है। इसको बोलते हैं मेजर ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। अभी रैंडम वेरिएबल अगर मेजर ऑफ स्क्यूनेस आ गई या बीटा वन की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हम इस बेसिस से फाइंड करेंगे, इसका एक्सपेक्टेशन फाइंड करेंगे, इसका एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस सी के होल क्यूब, खत्म। इसके अलावा कुछ है ही नहीं, ये बीटा इसका आप एक्सपेक्टेशन फाइंड कर लीजिए, फार्मूला याद हो चाहे नहीं याद हो आपको, इसका एक्सपेक्टेशन आपको बीटा वन की इक्वल आए इनके साथ रैंडम वेरिएबल। यहाँ भी वही चीज़ है, ये बीटा वन क्या है यहाँ पर भी वही है, म्यू थ्री स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू टू क्यूब। गामा वन सेम है, गामा वन प्लस रूट बीटा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट बीटा। सो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, बीटा वन ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगा, कभी निगेटिव नहीं हो सकता। क्यों क्यों निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि पहली क्वांटिटी जो लिखी है म्यू थ्री स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगी, बिकॉज दिस इज स्क्वायर, और नीचे जो लिखा है क्या लिखा है, म्यू टू क्यूब, एंड म्यू टू क्या होता है, ये म्यू टू जो होता है ये सिग्मा स्क्वायर होता है, राइट, सिग्मा स्क्वायर, एंड सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस होता है, वेरिएंस कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, वेरिएंस तो हमेशा ग्रेटर जीरो होगा। सो दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ की इसी के बेसिस पे हम लोग इसकी स्क्यूनेस डिफाइन करेंगे। तो अगर बीटा वन हमारा जीरो हो गया, इसका मतलब गामा वन भी जीरो हो जाएगा, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर म्यू थ्री ग्रेटर जीरो है, इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव स्क्यूड होगा, पॉजिटिव स्क्यूड। और ये म्यू थ्री ग्रेटर जीरो कैसे आया, फाइंड करोगे तो पता चल जाएगा। अगर ये निगेटिव हो गया, म्यू थ्री लेस जीरो हो गया, तो ये निगेटिव स्क्यूड है। ओके, तो मैंने क्या बताया यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि बीटा वन मैंने बताया कि बीटा वन की जो फार्मूला होता है, जो डिफिनेशन होती है वो म्यू थ्री स्क्वायर बाई म्यू टू होती है, ठीक है। बीटा वन ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगा, क्यों, क्योंकि उसकी डिफिनेशन ही ऐसी है, म्यू थ्री स्क्वायर जैसे कभी पहला ऊपर वाला टर्म स्क्वायर है, नीचे वाला किसी पॉजिटिव पॉइंट का क्यूब है, किसी पॉजिटिव पॉइंट का क्यूब करोगे कोई भी रूट लो पॉजिटिव ही आएगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइन होना चाहिए बस, तो वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसलिए ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन हमारा म्यू थ्री, अब हमें अगर पॉजिटिव और निगेटिव स्क्यूड बताना है, तो म्यू थ्री अगर ग्रेटर जीरो है तो ये पॉजिटिव स्क्यूड होगा, म्यू थ्री लेस जीरो है तो निगेटिव स्क्यूड होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेजर ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मोमेंट्स, जो कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कुछ बात करते हैं, कल हमने अब मेजर ऑफ कुर्टोसिस भी यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद जो खत्म करते हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चन कल करते हैं। सो अच्छा, मेजर ऑफ कुर्टोसिस भी यहीं देखते हैं। अब सही है शाम, हेलो, अभी शाम, तो मेजर ऑफ कुर्टोसिस देखते हैं। अब मेजर ऑफ स्क्यूनेस हो गया तो मेजर ऑफ कुर्टोसिस देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग एक क्वेश्चन डिफाइन करते हैं बीटा टू, जो मैंने पीछे डिफाइन कर दिया था गलती से, ये होता है बीटा टू म्यू फोर बाई म्यू टू स्क्वायर, और ये गामा टू डिफाइन करते हैं जो होता है बीटा टू माइनस थ्री। ये दोनों कोएफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस हैं, ठीक है, जो कि सेंट्रल मोमेंट है, ठीक है।
अब एक मिनट, ये तो फार्मूले हैं, ये जस्ट फार्मूले लिख लो इनको, अभी बाकी बताते हैं चीज़ें क्या होता है कुछ। आप बताइए, आप मुझे कोई मुझे बताए कि कुर्टोसिस का मीनिंग क्या होता है। ये तो फार्मूले मैंने लिख दिया कि बीटा टू अगर आपको फाइंड करना तो म्यू फोर बाई म्यू टू स्क्वायर कर दो और गामा टू फाइंड करना बीटा टू माइनस थ्री कर दो। अब यहाँ से कोई डिफिनीशन बताइए, मेजर ऑफ कुर्टोसिस क्या होता है। जैसे स्क्यूनेस में बताया कि स्क्यूनेस होता है लैक ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पर क्या होता है। किसी को पता है कुर्टोसिस क्यों डिफाइन किया गया, व्हाई डू वी नीड कुर्टोसिस। सो इसका मतलब होता है, इसमें क्या होता है, हम लोग फ्लैटनेस और पीकनेस और फ्रीक्वेंसी कर्व की बात करते हैं। दिस इज अ मेजर ऑफ फ्लैटनेस और पीकनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी। कुर्टोसिस इज अ मेजर ऑफ फ्लैटनेस और पीकडनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व, of the frequency curve। So we have different type of distribution which distribution had same mean, same variance, same standard deviation, and even same skewness. But there is one different thing is different in measure of kurtosis। आपको ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन मिलेंगे जिसके मीन भी सेम होंगे, वेरिएंस भी सेम होंगे, वेरिएंस सेम होगी स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम होगा और स्क्यूनेस भी सेम होगा, लेकिन वहाँ डिफरेंस जो होगा वो होगा कुर्टोसिस का। वहाँ फ्लैटनेस और पीकनेस होगी, कोई ग्राफ टेल्स की ओर बहुत ज्यादा होगा, कोई एकदम नॉर्मल की तरह होगा। समझ गए। तो इस पे तीन टाइप के कर्व डिफाइन किए गए हैं। एक होता है जो नॉर्मल कर्व होता है उसको हम बोलते हैं मेसोपोर्टिक, ठीक है। सॉरी सॉरी, हाँ नॉर्मल कर्व को बोलते हैं मेसोपोर्टिक, नॉर्मल कर्व को ही मेसोपोर्टिक, ठीक है। तो जो नॉर्मल कर्व होता है उसी को हम लोग मेसोपोर्टिक बोलते हैं। जो नॉर्मल का कर्व आपने देखा होगा, नॉर्मल का जैसा कर्व होता है बेल शेप, उसको या बेल शेप को बोल दो या मेसोपोर्टिक बोल दो या नॉर्मल बोल दो, इसको नॉर्मल, ठीक है। और जैसे हम काई स्क्वायर के ग्राफ देखेंगे ना, काई स्क्वायर का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसके लिए जो मीसोकोटिक होता है, तो मीसोकोटिक के लिए हमेशा बीटा टू आपको 3 मिलेगा और गामा टू हमेशा 0 मिलेगा। लेकिन अब एक कर्व आता है उसको बोलते हैं हम प्लीटिकोटिक, ठीक है। ये जो होगा ये होता है फ्लैटर देन नॉर्मल कर्व, ये होता है फ्लैटर देन नॉर्मल कर्व, ठीक है। ये नॉर्मल से ज्यादा फ्लैट होगा। और यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल से ज्यादा फ्लैट होगा। तो यहाँ पर बीटा टू ये होगा लेस 3, जो गामा टू होगा ये लेस 0, राइट, ठीक है। और ऐसे एक होता है मीसोकोटिक, प्लेटिकोटिक एंड लेप्टोकोटिक।
ये होगा पीक्ड, मोर पीक्ड देन नॉर्मल, ठीक है, दिस इज पीक्ड देन नॉर्मल। तो इस पे β2 ग्रेटर 3 होगा और यहाँ से ही γ2 अब ग्रेटर 0 कर सकते हैं। तो ठीक है, जैसे नॉर्मल अब अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए कि आप में से कोई ये बताइए कि इन जनरल जैसे आपने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा, तो लेप्टोकोर्टिक का एग्जाम्पल बताइए और मीसोकोर्टिक उसका प्लेटिकोर्टिक का एग्जाम्पल बताइए। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है प्लेटिकोर्टिक, लेकिन जो कॉची डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लेप्टोकोर्टिक होता है, क्योंकि कॉची डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल से ज़्यादा पीक होता है ना। ठीक है, तो इसको ग्राफ वाइज भी समझ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि इसको ऐसे ग्राफ वाइज भी समझ सकते हैं। तो ग्राफ वाइज ऐसा होता है, ठीक है, जो ग्राफ वाइज होता है तो एक्चुअली में ग्राफ थोड़ा सा क्लियर से बनेगा नहीं। सो नॉर्मल का पहले तो ग्राफ बना लो, पहले ग्राफ पहले तो ग्राफ नॉर्मल का बना, जैसे बेल से नॉर्मल कर, ये नॉर्मल हो गया। और अब अगर कर्व ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा, ठीक है, तो ये नॉर्मल है, इसको हम बोलते हैं मीसोकोर्टिक, मीसोकोर्टिक। ये आपका कर्व है, ये थोड़ा अच्छा नहीं बना है अभी, और आप चाहें तो इसको ऐसा कर सकते हैं। ये तो ये कर्व हो गया प्लेटिकोर्टिक। और ऐसे ही लेप्टोकोर्टिक कर्व भी बन सकता है। तो लेप्टोकोर्टिक कर्व बनाएंगे तो क्या होगा, लेप्टोकोर्टिक मोर पीक होगा। उसके लिए बेटा से ऐसे होगा समथिंग, ठीक है, तो ये मोर पीक होगा, तो इसको बोलते हैं लेप्टोकोर्टिक। देख लीजिएगा आप फिगर, आपको गूगल में कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है, थ्योरी अंडरस्टैंडिंग करिए फिगर को, ठीक है। तो ये फिगर होता है, मतलब जो मीसोकोर्टिक होता है वो बेल शेप होता है, नॉर्मल की तरह होता है, लेकिन जो प्लेटिकोर्टिक होता है वो ज़्यादा फ्लैटर होता है, फ्लैटर देन नॉर्मल कर्व। लेकिन जो लेप्टिकोर्टिक होता है वो पीक्ड देन नॉर्मल। आप देख सकते हैं फ्लैटर का मतलब ये फ्लैट है, ये फ्लैट है नॉर्मल से, लेकिन ये नॉर्मल से पीक ज़्यादा है, इसका पीक पॉइंट ये देखिए, ये पीक है, ये तो ये पीक नॉर्मल से ज़्यादा इसका पीक है। आप जैसे कोई गूगल करेंगे जहाँ फिगर अच्छा होगा वहाँ दिख जाएगा, क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। तो अब मेजर ऑफ कुर्टोसिस भी समाप्त हो गया। तो अब सारा थ्योरी तो मैंने सारी डिस्कस कर दिया है, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी कल की क्लास करेंगे। तो देखिए कुछ रिलेशन है β2 और β1 में, तो सबसे पहले तो रिलेशन लिखिए, रिलेशन या रिजल्ट्स, रिलेशन या रिजल्ट कुछ भी कह सकते हैं इसको, इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन, सो रिजल्ट्स ऑन β1 एंड β2, रिजल्ट्स ऑन
बीटा वन एंड बीटा टू एंड बीटा टू। सो पहला रिजल्ट है बीटा वन लेस आर इक्वल टू जीरो, ये आपने देखा ही। सेकेंड है कल आपको मैंने बताया था कि बीटा टू ग्रेटर आर इक्वल टू वन, या इसी से मैंने कल बताया था आपको कि प्रूव दिस म्यू फोर लेस आर इक्वल टू म्यू टी स्क्वायर, ये बोला था कल की क्लास पे कराया था। तीसरा यहाँ से आप लोग ये भी शो कर सकते हैं बीटा टू ग्रेटर आर इक्वल टू बीटा वन प्लस वन, ये भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसका मैं कुछ रिलेशन और बताता हूँ। तो एक रिलेशन होता है कि एक क्वेश्चन आता है आपसे, मतलब कि सपोज करो कि हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स, जिसका एब्सोल्यूट मोमेंट जो है, एब्सोल्यूट मोमेंट ऑफ ऑर्डर के, एब्सोल्यूट मोमेंट ऑफ ऑर्डर के, ऑफ ऑर्डर के, इसको अगर मैं डिफाइन कर दूं बीटा के से, ओरिजिन के अबाउट है, ठीक है, एब्सोल्यूट मोमेंट ऑफ ऑर्डर के अबाउट ओरिजिन, ठीक है, अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन। तो इसको अगर मैं डिनोट करूं बीटा के से, बीटा के, और जो के है, ये के आपका वैरी करेगा 1 से 2 से 1 n माइनस 1 से। इसमें जो पहला होता है, ये पहला रिजल्ट होता है बीटा के 2k पावर 2k बस आर इक्वल टू बीटा k माइनस 1 के बीटा k प्लस 1 की। और दूसरा जो रिजल्ट होता है, दूसरा होता है बीटा के 1 बाई के बस आर इक्वल टू बीटा k प्लस 1, k प्लस 1 पावर k प्लस 1 बाई में, ठीक। तो दिस इज 1 बाई k एंड दिस इज 1 बाई k प्लस 1, ठीक है। तो ये दो, अगर x कोई वेरिएबल है जिसका एब्सोल्यूट मोमेंट ऑफ ऑर्डर के अबाउट ओरिजिन हम बीटा के डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये बीटा के क्या है, ये एब्सोल्यूट मोमेंट ऑफ ऑर्डर के है। तो जो पहला रिलेशन आता है वो बीटा के की पावर 2k लेस आर इक्वल टू बीटा k माइनस 1 की पावर k, बीटा k माइनस k प्लस 1 की पावर k, ठीक है।
सेकेंड रिलेशन ये आता है। तो आप इसका प्रूफ देखना चाहें तो प्रूफ एससी गुप्ता लिखने का पूरा मिल जाएगा। पहले वहां से समझिएगा, जब ना समझ में आए तो फिर मुझसे पूछिएगा, ठीक है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, एक और रिलेशन ऐसे है। सपोज करो कि म्यू जे जो है ये है जेएस सेंट्रल मोमेंट, जेएस सेंट्रल मोमेंट है ना, जेएस सेंट्रल मोमेंट। ठीक है, तो ये जो म्यू 2j+1 होगा स्क्वायर एस आर इक्वल होगा म्यू 2j म्यू 2j+2। ये भी एक रिलेशन है कि अगर म्यू जे जेएस सेंट्रल मोमेंट है, ठीक है, तो म्यू 2j+1 स्क्वायर एस आर इक्वल टू म्यू 2j म्यू 2j और म्यू 2j+2। ठीक है, अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एनी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एनी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एनी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन odd order central moment, odd order central moment, odd order central moment, central moments is 0। मतलब कोई भी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हम कोई भी ऑड ऑर्डर मोमेंट निकाले, मतलब यहाँ म्यू 2n+1 ये इक्वल टू 0 होगा हमेशा। n नेचुरल नंबर है, n इक्वल टू n अगर हुआ ऑड ऑर्डर मतलब ओके 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, जब 1 से स्टार्ट करेंगे तो 2। किसी को कोई डाउट है क्या? वेट अ सेकंड, मैं डाउट देख रहा हूँ। या बोल दो, क्योंकि डाउनलोड होने में मुझे लगा प्रॉब्लम कर रहा है। एक मिनट, एक मिनट, मैं वो देख रहा था मीटिंग। बहुत बड़ा टाइप है, इसमें सब कुछ लिखा। सौरदीप गांगुली, सचिन इसका वॉइस प्रॉब्लम, अभी भी वॉइस प्रॉब्लम है क्या सचिन? आप अच्छा 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 अच्छा, ऐसा होता तो मतलब पीछे जो मैंने बताया, मैंने ये बताया कि सेंट्रल मोमेंट जो होता है वो जो आर अदर सेंट्रल मोमेंट होता है, अगर कोई सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो 0 होता है उसका। तो ये
ये क्लियर था कि नहीं? जैसे मैंने पीछे की स्लाइड में बताया, जैसे मैंने पीछे की स्लाइड में क्या बताया कि फॉर एनी सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट इज ऑलवेज जीरो। तो ये क्लियर है, ये दिखा, ये समझ में आया सब कुछ? ये ये जो मैंने बताया, ये अभी वॉइस क्लियर है ना सबको? अभी वॉइस क्लियर है सबको ना? हेलो, ठीक है। तो अब ठीक है, मैंने क्या बताया पीछे की स्लाइड्स में? मैंने ये बताया कि देखो कुछ रिलेशन होते हैं हमारे पास, चाहो तो इन रिलेशंस को याद कर लो, याद कर लो कि बेटर रहेगा, प्रूव करना हो तो टाइम टेकिंग होगा। मैंने बताया कि x अगर एब्सोल्यूट मोमेंट है आर्डर के का अबाउट ओरिजिन और बीटा के से डिनोट कर रहे हैं, x के अबाउट जो है एब्सोल्यूट मोमेंट ऑफ आर्डर के अबाउट ओरिजिन को हम बीटा के से डिनोट करें, तो बीटा के टू पावर 2/1 2k, पहला रिलेशन देखना, बीटा के की पावर 2k लेस आर इक्वल टू बीटा के माइनस वन की पावर के, बीटा के प्लस वन की पावर के, ये पहला रिलेशन है। दूसरा बीटा के पावर 1/k लेस आर इक्वल टू बीटा के प्लस वन की पावर 1/k। ये एक्स बीटा के है क्या? एब्सोल्यूट मोमेंट ऑफ आर्डर के अबाउट ओरिजिन। अब मैंने बताया कि अगर मेरे पास कुछ जे सेंट्रल मोमेंट है, जे सेंट्रल मोमेंट, तो हम वहां पर ये प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हैं कि म्यू 2j प्लस 1 स्क्वायर लेस आर इक्वल टू म्यू 2j एंड म्यू 2j प्लस 2। तो ये आप प्रूव करने के लिए आप घर पे जाइएगा, एक्सरसाइज है आपकी, होमवर्क है, आप होमवर्क कर दीजिए। इसी तरह फॉर एनी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी और आर सेंट्रल मोमेंट को जीरो प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है? तो अब मैं मेरे हिसाब से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का कोई ऐसा टॉपिक बचा नहीं है जो थ्योरी मैंने नहीं बता दिया हो। तो कल हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए सब लोग कल असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। मैं फर्दर भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, आज भी मैं कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक अभी कराऊंगा जस्ट। सो थ्योरी मेरी डिस्कस हो गई, जितना डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की थ्योरी थी वो डिस्कस हो गई, ठीक है? अब एक क्वेश्चन और मान लो, क्वेश्चन है सपोज के लिए, लेट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ xi are equal to 1 to 10 is 50 and geometric mean of yi I equal to 1 to 10, 1 to 10, ठीक है? 1 to 10 each okay, then define zi equal to yi by xi, then if g is gm of geometric mean of zi, then
रूट ऑफ जी, रूट ऑफ जी इज, तो पहला ऑप्शन है 1/10, दूसरा ऑप्शन है 10, थर्ड ऑप्शन है 50, फोर ऑप्शन है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन में बोला लेट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स आई इज 50 एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई आई आई इक्वल टू 1 to 10 इज 500। ठीक है, डिफाइन जेड आई इक्वल टू वाई आई अपॉन एक्स आई, देन इफ जी इज जीएम ऑफ जेड आई, जे जेड आई का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो जी है। मेरी वॉइस इको तो नहीं कर रही ना, क्या वॉइस इको नहीं कर रही ना अभी, वॉइस इको नहीं कर रही ना अभी। ओके, सो इफ देन इफ जी इज जीएम ऑफ जेड आई, देन रूट जी की वैल्यू बताइए, तो इसको बताइए कोई सॉल्व करके। कोई नहीं। सो पहला हमारे पास टास्क क्या है, हमारे पास पहला जो टारगेट है, जो पहला टारगेट है फर्स्ट, सपोज करो कि हमारे पास एक एक्स आई का कोई सीरीज है, इसका जीवन है ज्योमेट्रिक नहीं, ठीक है, जैसे जीएम, और एक वाई आई है, वाई आई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वाई आई एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इसमें वाई वन वाई टू वाई एन टाइप है, ठीक है, और इसका ज्योमेट्रिक मीन G2 है, इसका ज्योमेट्रिक। अब हमने एक नया वेरिएबल डिफाइन किया जेड आई इक्वल टू वाई आई डिवाइड बाई एक्स आई। ओके, सो अगर मुझे जेड आई का, मान लो जेड आई का ज्योमेट्रिक मीन जी है, तो जी इक्वल टू होगा क्या, जी इक्वल टू होगा Z1 इंटू Z2 सो ऑन Zn के पावर 1/n, क्योंकि यहाँ पर जो आई है वो 1/n ही तो है, 1 2 सो ऑन n तक ही है। बोलो भाई यही होगा 1 बाई, अब Z1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये आएगी y1/x1, Z2 की आएगी y2/x2, तो Zn होगा वो होगा y1/xn की पावर 1/n। तो अब ऊपर वाला एक साथ प्रोडक्ट कर दो तो ये हो जाएगा y1 y2 सो yn पावर 1/n, और नीचे वालों को एक साथ ले लो, ऐसे नीचे वाले को लोगे तो क्या होगा, ये x1 x2 सो xn और 1/n। ओके, अब भाई ज्योमेट्रिक मीन अगर वाई आई का G2 है, तो G2 बाई डेफिनेशन क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन, G2 की डेफिनेशन से G2 ज्योमेट्रिक मीन की यही होगा ना, y1 yn, y1 y2 y2 भी कर लेना y2 सो yn के पावर 1/n, और सिमिलर यहाँ पर G1 क्या होगा, तो G1 होगा वो इक्वल होगा x1, वॉइस क्लियर आ रही है ना, x2 xn के पावर 1/n, वॉइस क्लियर है ना। ठीक है, ओके, सो यहाँ आई इक्वल टू 1 तो ये G1 है, ये G2 है, तो ऊपर वाला क्या होगा G2 और नीचे वाला क्या होगा G1। ओके, सो जो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ जेड आई आया वो क्या आया, G2/G1। सो G इक्वल टू मतलब जी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ जेड आई, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ जेड आई ये क्या आया, G2/G1, G2/G1, और यहाँ पर आप इसको G लिख सकते हैं, ठीक है G। ओके, तो G2/G1 हो गया।
अब बात करते हैं हम। तो अब यहां से एक रिजल्ट ये बना कि अगर रेशियो में हमारे पास है कोई क्वांटिटी, मान लो यहां से रिजल्ट लिख लो कि एक्स आई है और इसका एक्स आई हमारे पास एन ऑब्जर्वेशन है एक्स आई टाइप की, और इसका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो G1 है, और वाई आई हमारे पास एक एन ऑब्जर्वेशन है वाई आई टाइप की, और इसका ज्योमेट्रिक मीन G2 है। तो अगर मैं एक नया वेरिएबल डिफाइन करूं जो रेशियो में हो, जेड आई इक्वल टू क्या हो, एक्स आई डिवाइड बाई वाई आई, तो रेशियो में कुछ भी हो सकता है, ये एक्स आई अपान वाई आई होगा, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन जो होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा वो होगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ जेड आई यहाँ पर जो होगा वो होगा G1 अपान G2। वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन भी रेशियो में हो जाएगा, अगर यहाँ वाई आई अपान एक्स आई होता तो G2 अपान G1 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ याद कर लो कि जो भी रेशियो में क्वांटिटी होती हैं उसका ज्योमेट्रिक मीन डायरेक्ट वैसे ही हो जाता है। तो अगर हमारे पास ऐसा डेटा है तो हमें फाइंड नहीं करना, कैलकुलेट नहीं करना, डायरेक्ट लिख दो। तो पीछे वाला क्वेश्चन इसी थ्योरी पे बेस्ड था। मैंने बोला कि पहले पहले जो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स आई है 10 ऑब्जर्वेशन है, इसका 50 में है, लेकिन सेकेंड वाई आई टाइप की इसका 500। फिर मैंने डिफाइन किया जेड आई इक्वल टू वाई आई अपान एक्स आई, और मैंने बोला कि अगर इसका जी ज्योमेट्रिक मीन है जेड आई का, तो रूट जी की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से आप फाइंड कर लीजिए। यहाँ से पहले जी फाइंड करिए, तो मैंने क्या बोला, जी इक्वल टू यहाँ पर है क्या, जेड आई इक्वल टू है एक्स आई बाई वाई आई, यही है ना, वाई आई बाई एक्स आई, देखना पड़ेगा वाई आई बाई एक्स आई, ठीक है, वाई आई बाई एक्स आई, वाई आई बाई एक्स आई। तो मैंने अभी जो पीछे प्रूव करवाया कि ज्योमेट्रिक मीन अगर जेड आई का ज्योमेट्रिक मीन मैं जी बोलूँ, डिनोट करूँ, बी डिनोट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ जेड आई इक्वल टू जी, देन जी की वैल्यू क्या होगी, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ जेड आई, वैसे ही रेशियो कर दो वाई आई का ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई आई, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई आई डिवाइड बाई ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, सॉरी यहाँ जेड नहीं है, यहाँ एक्स है, ठीक है, कंफ्यूजन के लिए ये गलत लिखा, ये एक्स आई है, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स आई ओके, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई वाई डिवाइड बाई ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स आई, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई आई की वैल्यू क्या होगी, है गिवन है हमारे पास 500 और ये 50 और ये आपका था, अच्छा कोई भी ऑप्शन नहीं मैच करेगा ऐसे तो ना, अच्छा कोई ऑप्शन मैंने गलत लिखा था ना, ठीक है, तो आएगा आपका 10, तो रूट 10 होगा, ओके, इस ऑप्शन को रूट 10 कर लीजिए, ठीक है, इसको रूट 10 रूट जी की वैल्यू फाइंड करना। एक्चुअली में मैंने सोचा ये 100 आएगा, यहाँ 100 के लिए हमको 5 का करना, ओके ठीक है, ठीक, तभी तुम लोग आंसर नहीं दिए किसी ने, तो इसका सेकंड होगा, ठीक है, रूट जी की वैल्यू, जी यहाँ से आएगा 10, जी की वैल्यू आई 10, जी की वैल्यू 10 आई, तो रूट 2 और जी की वैल्यू आ जाएगी रूट 10। तो इस क्वेश्चन को कराने का बेसिक ये था कि कभी ऐसा सीरीज में रेशियो में आ जाए जो पूछे तो आप कुछ कैलकुलेशन मत कीजिए, डायरेक्ट उसका रेशियो ले लीजिए, ठीक है, सबको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आगे तुम लोग असाइनमेंट करना, सॉल्व करना, बाकी आगे मैं फर्दर कल सॉल्व करेंगे, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे असाइनमेंट के, और क्वेश्चन में कुछ नहीं कराऊंगा, तो कल की क्लास में करेंगे। अभी तक अगर किसी को डाउट हो प्रीवियस स्लाइड्स में डालें तो पूछ सकता है, ठीक है, अपना डाउट। अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन का एम जीएम और एचएम इक्वल है, लास्ट क्वेश्चन, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, distribution is Joनी model, distribution is positive skewed, or all observation are equal। बताओ भाई, मैंने तुम्हें लोगों से पूछा कि अगर किसी भी क्वांटिटी के एम जीएम और एचएम इक्वल है
तो इसका मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव स्क्यू, ऑल ऑब्जर्वेशन आर इक्वल और डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिमॉडल। मैंने क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि अगर मान लो कि एम एच एम एंड जी एम आर इक्वल इन पहला डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, दूसरा ऑल एक्स आई और सेम ऑल द वैल्यूज आर सेम, या ऑल एक्स आई नहीं कहेंगे ना, क्योंकि हमें एक्स आई डिटर्मिनेट नहीं मिलती। ऑल द वैल्यूज आर सेम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल द वैल्यूज आर सेम, ऑल द वैल्यूज आर सेम, ऑल द वैल्यूज आर सेम। तीसरा लिखेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव स्क्यू, डी नंबर लिखें 4 नंबर द डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिमॉडल, द डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिमॉडल। इज यूनिमॉडल, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? या तो आप इसको लिख लीजिए, कल सॉल्व करके आइएगा, दिन डिस्कस करेंगे। अभी अगर बता सकता हूँ जस्ट सेकेंड, व्हाई नॉट फर्स्ट वन? Yeah, you are correct. I am saying why first is not true. If all the value is same, then mean median mode is also equal, na? If all the value are same, then mean median mode are also equal. Then why distribution is not symmetric? You say all the value is same, then AM, HM and GM are equal. Okay. I say if all the values are same, then distribution is also symmetric. Means if all the values are same, then mean median mode are equal, then why distribution is not symmetric? Equal find. You know any distribution, any symmetric distribution which AM, HM and GM are not equal. अच्छा, कोई सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जानते हो जिसका AM, HM और GM इक्वल ना हो? बीटा 2, का अगर AM, GM और HM निकालें तो तीनों इक्वल आएगा क्या?
बीटा 2, 2 इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट हाफ, लेकिन इसका AM, HM और GM इक्वल नहीं आएगा। अच्छा ओके ओके, आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग हिंदी? ओके, so if you consider beta 2 comma 2, this distribution is symmetric about half, but here you see AM, HM and GM are not equal. Okay, so we discarded in this type first option. Okay, are you understand? How can you eliminated first option? I want to know how you eliminated first option. I want to say you eliminated in this base first option if you consider your distribution x followed beta 2 comma 2. Okay, x followed beta 2 comma 2, x followed beta 2 comma 2, and finding AM, GM, HM, AM beta 2 comma 2, AM, GM, AM, HM and GM. Find these three values. These three values not equal. Okay, these three values not equal, but this distribution is symmetric. This distribution is symmetric about half. About half. Okay, are you understand? Or any distribution you take in terms of normal distribution also. This is an example of beta distribution. Okay, you can also take an example of normal distribution or any other distribution which is symmetric, but where in that distribution AM, HM and GM are unequal. There are many examples of distributions. Okay, तो ठीक है, यहीं पर एंड करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज मैं यहीं पर मीटिंग करता हूँ। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? बताओ भाई, किसी को कुछ पूछना है? सो गुड, थैंक यू फॉर। बोलो बोलो बोलो। यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स होता है कि उसका उसका मॉड यूनिमॉडल मीन्स होता है कि उसका यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स द मीनिंग ऑफ यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन इज, यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन में है कि उसका मॉड 1 ही होगा। एक्चुअली में हमारे पास दो केस होते हैं ना, एक बाई मॉडल होता है, एक यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बाई मॉडल में हमारे पास दो मान मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम जब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ती होगी पॉइसन में, तो पॉइसन में क्या होता है, when you are studying about Poisson distribution, तो Poisson distribution में लेम्डा होता है, Poisson लेम्डा। सपोज करो कि x फॉलो कर रहा है Poisson लेम्डा को, ओके। तो यहाँ बाई मॉडल और यूनि मॉडल होता है। कब होता है? एक लेम्डा होता है, लेम्डा इज एन इंटीजर, और एक होता है लेम्डा इज नॉट इंटीजर, लेम्डा इज नॉट एन इंटीजर। भाई लेम्डा तो क्योंकि लेम्डा जो होता है वो क्या होता है, दिस लेम्डा इज ग्रेटर 0, नॉट एन इंटीजर। ठीक है, तो दिस लेम्डा इज नॉट एन इंटीजर। तो यहाँ जब इंटीजर होता है तो यहाँ दो होती है माड की वैल्यू। यहाँ जो मॉड ऑफ एक्स होगा, यहाँ मॉड ऑफ एक्स होगा, यहाँ 2 होगा, लेम्डा भी होगा और लेम्डा -1 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओनली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लेम्डा होगा, मतलब लेम्डा का जो फ्रैक्शनल पार्ट वो लेम्डा इंटीजर नहीं होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो पार्ट होगा वो होगा, ये होगा मॉड ऑफ एक्स। यहाँ पर ओनली 1 मॉड होगा। इस केस में हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनि मॉडल। अगर लेम्डा इज नॉट इंटीजर देन ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका यूनि मॉडल होगा। ठीक है, यूनि मॉडल होगा। लेकिन यहीं पर ये होगा जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर इंटीजर हो गए तो ये बाई मॉडल हो जाएगा। तो यूनि मॉडल और बाई मॉडल में ये डिफरेंस होगा। ठीक है,
ऐसे ट्राई मॉडल भी हो सकते हैं बहुत सारे, क्योंकि बाई मॉडल, ट्राई मॉडल और मल्टी मॉडल भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं ना, क्योंकि मॉड एक ऐसी क्वांटिटी, मॉड क्या है, मॉड कभी फिक्स नहीं होता है, मॉड फिक्स नहीं हो सकता। मॉड क्या होता है, मॉड इज द वैल्यू ऑफ वेयर द प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, मॉड इज द वैल्यू ऑफ दैट पॉइंट ऑफ एक्स वेयर द प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। तो देयर एग्जिस्ट more than two probability or more than one probability, more than one point their probability are equal, okay. So Poisson के केस में अगर lambda इंटीजर है तो there are two point where this probability are equal, बट अगर इंटीजर नहीं है तो वहां पर ओनली वन पॉइंट होगा, वहां पर ही मैक्सिमम होगी प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम बाई मॉडल और यूनी मॉडल बोलते हैं। और कोई डाउट? ठीक है, चलो ठीक है, फिर यहीं पर लेफ्ट करते हैं, ओके, नहीं करते हैं, ओके, थैंक यू।